दोस्तों पाकिस्तान इज इन अ डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। ये एकदम सही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान में आप अलग अलग न्यूज चैनल्स पर देखोगे कि वहाँ पर कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि मॉल्स को पहले ही बंद कर दिया जाएगा, मार्केट्स को पहले ही बंद कर दिया जाएगा, वेडिंग जो हॉल्स हैं उनका एक टाइम लिमिट सेट कर दिया गया। ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं ताकि एनर्जी सेव हो सके, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी अभी नहीं बचे हैं कि वो ऑयल इंपोर्ट कराए और से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। Pakistan is facing the threat of an economic collapse, similar to that of Sri Lanka, with the country's rupee falling more sharply than expected. That will weigh on the country's ability to pay for imports of essential items in the coming weeks, at a time when its foreign currency holdings are already near a 9-year low. The situation is fast turning dire, with experts predicting that Pakistan will have to start rationing petrol and diesel soon. In addition to the food crisis the country is already battling, low foreign exchange reserves, especially dollars, and a falling domestic currency are recipes for an economic disaster. Pakistan's forex reserves have fallen below $5 billion from about $17 billion a year ago, underscoring the dire situation the country faces, similar to what Sri Lanka experiencing. Experts say Pakistan's current foreign currency holdings of $4.34 billion are enough to cover maybe a week's worth of imports, just about. The government is unable to fulfill its foreign debts without borrowing from friendly nations due to the dramatic decrease in its import cover, because of which Pakistan has approached the International Monetary Fund for a bailout. But media reports suggest Pakistan has not been successful in its attempt to seek further help from the IMF. Instead, it has received financial help from its allies China and Saudi Arabia. The rupee has declined sharply despite being managed by the State Bank of Pakistan, and the country could soon face a shortage of fuel and essential items like food because of its inability to pay for imports. That comes after reports last week that no flour was available in several cities, including Lahore, the second most populous city in Pakistan, thanks to skyrocketing prices. Shehbaz Sharif-led Pakistan government has raised prices of wheat flour, sugar and ghee by about 25 to 60%, essentially removing state subsidies, which is a part of a condition for an IMF bailout. The IMF had asked Pakistan to hike power and gas prices for the revival of its stalled funding program. Earlier this month, to save energy, which is primarily derived from imported oil, Pakistan asked government employees to work from home and ordered markets, wedding halls and retail malls to close early. Pakistan also put up its embassy property in Washington up for sale in what is being viewed as a desperate attempt to ensure the economy does not crash. In yet another major blow, a separate report shows the World Bank has delayed 2 loans totaling $1.1 billion until April. Moving on, as Sri Lanka battles its worst economic crisis in 70 years, the joblessness rate has climbed, stoking massive social and political concerns. The latest official data shows the island nation's unemployment rate rose to 5% by the end of September last year, and during this time, the economy contracted by 12%. The unemployment rate was 4.6% in the prior quarter ending June. The central bank's monthly business surveys, which are more forward-looking indicators, revealed a consistent cut in jobs in both the manufacturing and services sectors as a result of hiring freezes, layoffs and retirement. And what will complicate matters further for policymakers, data showed labour participation in Sri Lanka continues to sink. The exodus of people from the country escaping the miserable living conditions have added to the issues facing businesses in recruiting top talent. Sri Lanka lost well over 300,000 of its workforce in 2022 to overseas employment, the worst for any year on record. Sri Lanka has also cut its recurrent budget spending by 6% this year to manage its finances. The cabinet also approved a plan to delay the salaries of government employees to manage its already stretched and highly indebted public finances. A cut in public spending is a requirement for an IMF bailout, which the president said was the only way out for the crisis-stricken country. That comes at a time
when the most vulnerable in Sri Lanka fear that they won't be able to make it through the food security crisis caused by the country's rising cost of living. The government struggles to manage the country's worst economic crisis since independence and balance it with conditions for a bailout, which the island nation desperately needs. दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने सुना होगा अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट बहुत गहराई से बढ़ता जा रहा है। उसके तो खैर बहुत सारे मानदंड होते हैं, जीपी में गिरावट और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व वो बहुत गिर गया है। उनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए $8 बिलियन की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आम जिंदगी में देखें तो जो रोटी हम खाते हैं वो रोटी वहाँ अभी 30 रुपए की हो गई है। और वो 30 रुपए की रोटी जो व्यक्ति खरीदता है उसको कम से कम एक परिवार के लिए 10 रोटी लगती है और उसकी टोटल आय 500 रुपये है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी रुपया है वो खैर भारत के 50 पैसे के बराबर है। वो डॉलर के मुकाबले 230 रुपया हो गया। $1 के बराबरी में 230 रुपया। और ये जो संकट पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, इसी के साथ साथ कुछ लोग यहाँ दावा कर रहे हैं कि देखो भाई भारत में हैं, मोदी के राज में हैं तो कितना अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान में देखो कितनी बदहाली चल रही है। मैं उनको याद दिला दूं कि ये जो बदहाली पाकिस्तान में इतनी भयंकर रूप से चल रही है, उसी के साथ साथ एक और घटना अभी हुई थी 6-8 महीने पहले। वो क्या हुआ था आपको याद होगा। श्रीलंका में लोगों ने एक बहुत बड़ा उठाव किया, राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ लाखों करोड़ों लोग जुड़ने लग गए, क्योंकि वहाँ भी अनाज की कीमतें, रोटी, पेट्रोल और सब चीज़ें बहुत भयंकर रूप से ख़राब होने लग गई। और उसी के साथ साथ जैसे पाकिस्तान में अभी जो संकट गहराया है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि अभी वहाँ बाढ़ आई है। श्रीलंका में जो संकट गहराया था उसके पीछे भी 1-2 और भी कारण थे। ख़ास तौर से वो जो सरकार ऑटोक्रेटिक तानाशाही टाइप सरकार थी, जो लोगों की मर्जी कंसल्टेशन से नहीं चलती थी, उसने 2 बड़े फैसले किए थे। एक तो फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट को कम कर दिया था, दूसरा राजपाक्सा एयरपोर्ट, ये लाखों करोड़ों के खर्चे से बनाया गया था, जिसका कोई उपयोग श्रीलंका की इकोनॉमी में नहीं हो रहा। तो श्रीलंका में जो हालात बने हैं और पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, उसमें एक चीज़ सामान्य है कि ये दोनों में जो एक तानाशाही टाइप की राजनीति चलती है, इसकी करीबी मिलिट्री से भी है, पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी। पाकिस्तान में भी मिलिट्री का बहुत दबदबा है। श्रीलंका में भी जो प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह हैं, गोटाबाया राजपाक्सा, कभी प्रेसिडेंट रहते हैं, कभी आर्मी के चीफ रहते हैं। और तीसरी बात जो बताऊं, इसी के साथ साथ भले ही ये दावा किया गया हो कि भारत में तो फ्री राशन मिल रहा है और यहाँ शुक्र मनाओ सब कुछ हो रहा है, पर पिछले 8 सालों में जो राजनीतिक हालात हैं वो कैसे गिरे हैं, उसके मैं थोड़े आपके सामने आंकड़े बयान करना चाहता हूँ। हमारा जो जीडीपी है वो पिछले 8 सालों में 7.29 से गिरकर 4.72 हो गया है। बेरोजगारी की दर 5.5% से बढ़कर 7.1 हो गई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो बड़े उद्योगपति कर्जा लेते हैं, वापस नहीं कर पाते, जनरली उनको माफ़ कर दिया जाता है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, वो 5 लाख करोड़ से बढ़कर 18.2 लाख करोड़ हो गई है। हमारा जो एक्सपोर्ट निर्यात 8 साल पहले 69% था, 69% था, वो अभी गिरकर हो गया है 6.4%। डॉलर के मुकाबले भारत पहले 8 साल पहले 59 रुपया था, 59, अभी वो हो गया 83%। और आम जिंदगी में हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं।
आम जनता में महंगाई के कारण कितना हाहाकार मचा हुआ है। निर्मला सीतारामन जी हमारी वित्त मंत्री कहती तो हैं कि वो भी मध्यम वर्ग से आती हैं, पर मध्यम वर्ग की आज जो पीड़ा है महंगाई के कारण, गरीब वर्ग की जो पीड़ा है महंगाई के कारण, वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़तरनाक है। तो खैर, भले ही भारत की हालत उतनी ख़राब न हो जितनी श्रीलंका की हुई थी, पाकिस्तान की हुई, पर दिशा तो वही है कि यहाँ की आर्थिक हालात में गिरावट चल रही है। अब मैं इन तीनों देशों को मिलाकर देखता हूँ तो एक चीज़ मुझे सामान्य दिखती है, वो ये है कि धर्म के आवरण की राजनीति का प्रभाव। और दूसरी चीज़ जो दिखती है कि ये तीनों देश उपनिवेश थे, ये भारत तो एक ही था, और इसी अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण इसके दो टुकड़े हो गए। जबकि पाकिस्तान में शुरू से मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद धर्म के नाम की राजनीति करने वाले और मिलिट्री तत्व सामने आ गए। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में भी जो राजनीति को ब्रिटिश ने एनकरेज किया, बढ़ावा दिया, वो थी तमिल सिंहला राजनीति बनाम सिंहला बुद्धिस्ट राजनीति बनाम हिंदू तमिल राजनीति। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारे तमिल यहाँ से तमिल तो हिंदू हैं, वो यहाँ से प्लांटेशन वर्कर के रूप में गए और बाद में वहाँ बस गए। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो अंग्रेज़ों ने जब राज किया तो जो श्रीलंका बुद्धिस्ट, सिंहला बुद्धिस्ट, इनको बहुत बढ़ावा दिया और तमिल उसके खिलाफ एक टारगेट रखा गया। तो श्रीलंका में भी देखिए, आज़ादी के बाद से थोड़े सालों में बाद में ही तमिल लोगों को नागरिकता देने से इनकार किया गया, तमिल भाषा को डी रिकॉग्नाइज किया गया। इसके कारण तमिल लोगों में असंतोष बढ़ा और फिर बाद की घटना तो आप जानते हैं, कैसे एलटीटी बना और कैसे उसके बहाने तमिलों पे घृणित अत्याचार हुआ। तो श्रीलंका में पहले हिंदू मारे गए सिंहला बुद्धिस्ट की तरफ से, फिर मुसलमानों पे आक्रमण हुआ, फिर ईसाइयों पे आक्रमण हुआ। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने तो कहा कि भाई हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, राज्य का लोगों के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। 11 अगस्त 1947 की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच बहुत क्लासिकल स्पीच है, बहुत बेहतरीन स्पीच है, पर स्पीचेस से कुछ होता नहीं है। समाज में जिन्ना के आसपास जो लोग थे वो सब सांप्रदायिक थे, सब फंडामेंटलिस्ट थे। उन्होंने नीतियाँ बदल दी और पहले हिंदुओं का, फिर ईसाइयों का परसिक्यूशन चालू हुआ, इन पे अत्याचार चालू हुए। साथ ही साथ इस्लाम के कुछ अंदरूनी तबके शिया और कादियानी, उनको भी अत्याचार हुए। और इसी के साथ साथ जो सत्ता है, जैसे श्रीलंका में सिमट गई गोटबाया राजपक्षे और ऐसे मिलिट्री के आसपास, वैसे पाकिस्तान में भी सत्ता सिमट गई ज़्यादातर तानाशाहों के हाथ में। और लोकतंत्र तो, डेमोक्रेसी कभी कभी आती जाती रहती है, पर उस पर भी मिलिट्री का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत में इसके विपरीत हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलकर भारत ने जो विकास किया, जो नींव डाली, वो बहुत महत्वपूर्ण नींव थी। एक तरफ से उद्योग धंधे, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़, मेडिसिन फैक्ट्रीज़, जो देखा जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बड़े रूप में हुआ। उसी के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा संस्थान, IITs, CSIR, इसरो, बार्क, BARC, इन सब का विकास हुआ। वैज्ञानिक सोच को तो भारतीय संविधान में ही रखा गया कि ये वैज्ञानिक सोच को राज्य की तरफ से बढ़ावा दिया जाएगा। अब पिछले 20 सालों में, 30 सालों में रास्ता बदल गया है और जो पहले हमारा लक्ष्य था, शिक्षा, उद्योग धंधे, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, उसके बदले धर्म के नाम की राजनीति ने केंद्रीय मुद्दा, केंद्रीय सीट पे बैठ गई है। और उसके चलते मुख्य बातें यही होती हैं कि भाई 2024 तक
राम मंदिर बन जाएगा, 5 मंदिर और बन जाएंगे, 6 मंदिरों को और भी हम निर्माण कर रहे हैं। फिर वही मुद्दे जो धर्म के नाम पर गौ हमारी माता है, लव जिहाद, धर्मांतरण, इन मुद्दों पे जो फोकस किया गया, उसके बाद से खास तौर से पिछले 8 साल में हमारे विकास की दिशा बहुत उल्टी दिशा में गई है। ये मानना पड़ेगा कि जो उद्योग धंधे, खेती में विकास, उसमें कई उसकी आलोचना की जा सकती है, कई गलतियां रही होगी। उसके बावजूद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो मूलभूत आधार है वो काफ़ी मजबूत था। उसके कारण हम अभी तक उतने संकट में नहीं गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम उस संकट में न जाएं, पर यह बात है जब से धर्म के नाम की राजनीति, अब मैं बार बार कहता हूं, धर्म नैतिकता है, धर्म मानवता से प्यार है। धर्म के नाम की राजनीति समाज के मुद्दों से हटकर ऐसे मुद्दों को लेती है जिससे समाज का विकास रुक जाता है। और अभी तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, हमारा संविधान जो कहता है उसके उलट हो रहा है। संविधान कहता है अमीर और गरीबों के बीच की खाई को कम करना चाहिए, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रही है अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है, और देश की 50% गरीबों के पास 10% से भी कम है। तो आज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और जो चीज़ें हो रही हैं, दावे तो अच्छे दिनों के हैं, पर जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है वो अच्छे दिन नहीं दिखते। तो मैं इस बात पे रेखांकित करना चाहता हूँ कि एक तो ब्रिटिशों ने जहाँ शासन किया, एक तरफ तो नई चीज़ों को लाए, उद्योग धंधे लाए, एजुकेशन लाए, ट्रांसपोर्ट लाए, दूसरी तरफ से उन्होंने यहाँ उस राजनीति का भी प्रवेश करवाया जो विभाजनकारी राजनीति है। विभाजनकारी राजनीति भारत के उपमहाद्वीप में हिंदू मुसलमान के नाम पे, श्रीलंका में सिंहला बुद्धिस्ट वर्सेस तमिल हिंदू के नाम पर, ये राजनीति जब अपने उभान पर आती है, श्रीलंका और पाकिस्तान में तो जल्दी से आ गई, भारत में ये राजनीति बढ़ रही है। जहाँ भी ये राजनीति केंद्र पे रहेगी वहाँ समाज का विकास नहीं हो सकता। और ये बात हमारे पूरे इंडाइसेस जो मैंने आपके सामने रखे उससे स्पष्ट होते हैं। तो पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए, श्रीलंका से सबक लेना चाहिए, और वो सबक ये है कि उस रास्ते पर जो मज़हब का उपयोग राजनीति में करता है, जहाँ मिलिट्री ज़्यादा मजबूत हो जाती है, वो रास्ता विकास का रास्ता नहीं है। उस रास्ते पर हम न चलें, और वो देश भी इस अपनी दुविधा से सीख कर आ जाएं कि विकास का रास्ता वही होता है जो भारत ने अपने विकास के पहले 40-50 साल में किया था। अगर वो भी इस रास्ते पर आ जाएं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वहाँ के लोगों की भी परिस्थिति सुधर जाएगी। नहीं तो वरना तो खैर बात तो यही हो गई कि जैसे जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो पाकिस्तान की एक कवित्री फहमीदा रियाज ने एक कविता लिखी थी भारत को उद्देश्य करते हुए, अरे तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, कि हम तो गलत रास्ते पे थे ही, तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपना कोर्स करेक्शन करेंगे, रास्ते को सही करेंगे, और समाज की जो प्रायोरिटी है, रोटी कपड़ा मकान, उद्योग धंधे, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, उस रास्ते पर आएंगे, और धर्म को एक निजी मामला रखकर सामाजिक तौर पे उसका ईमानदारी से पालन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।